Good morning, students. Welcome back after the summer vacation. And today we'll continue our previous topic of history, that is, rise of nationalism in Europe. So, prior to this, we read about the French Revolution, conservatism after 1815, and the age of revolution 18 and 30s to 48, and then romantic imagination and national feelings, and after that in which the lastly we read all about the you can say means what had happened in Europe, and Russia was you can say became one of the power, and it wanted that means Russian language should be compulsory all sphere of life, and but it could not happen there. So this much we had discussed. If you revise the chapter, you will know all the things properly. So let's begin. The another topic: hunger, hardship, popular revolt. So what was happening in 1830s to the 1848? So let's begin. So hunger, hardship, and popular revolt, like the 1880s were the year of great economic hardship in Europe. And the first half of the 19th century saw enormous increase in the population all over Europe. Means this was the period when industrialization was increasing, and simultaneously we'll see that the population also increasing. So in Europe, most of the countries were more seekers of job than employment. As remember, always keep in mind, because one chapter last year we read about French Revolution. If you keep all in mind the circumstances what had happened, so easily you can understand. So most of the countries were more seekers of job than employment. जॉब देन एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को ये नहीं था कि उनको कोई डीपली कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो रेगुलर होने, ये मतलब नहीं था. ज़्यादातर लोगों को ये था काम मिले, कैसे भी मिले. When another chapter we will read like age of industrialization, and you can say another chapter of history will discuss the print culture in media. So means you will see there what are the main thing that what was happening there in the countries. So population from rural areas migrating to the cities to live in the overcrowded slums. Why overcrowded slums? Because if you see that industry, because of the job, in want of job, people were migrating from the village. Why? Because the crop failure was there, and the climate was very much harsh. So the people who did not have work, they were migrating. Small producers in the towns were often faced with a stiff competition from the imports of cheap machines made good from England. अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली आती है, जब आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखेंगे तो वहाँ इंडस्ट्रीज जैसे शुरू होती हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि मशीन्स तो आ गई हैं, लेकिन वो मशीन्स कैसी हैं, वो मशीन भी मतलब लोग उनको इस्तेमाल करने से डर रहे हैं. ठीक है, चीप मशीन मेड गुड्स फॉर इंग्लैंड, जो कि सामान कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, इंग्लैंड. इंग्लैंड वॉज वन ऑफ द हब ऑफ दैट पर्टिकुलर items, and were industrialization more advanced than on the continent. मतलब पूरे एरिया में वही एक ऐसी जगह है इंग्लैंड जहाँ पर ये सब चीज़ें एडवांस्ड हैं. दिस वाज स्पेशली ऑन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ज़्यादातर हम बात करें तो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं. ठीक है, आप ब्रिटिश पीरियड का अगर देखते हैं, टेक्सटाइल ही मेन था, क्योंकि कॉटन रॉ मटेरियल दे यूज टू टेक फ्रॉम इंडिया, एंड मैन्युफैक्चर कहाँ होता था, बनता कहाँ था, रेडीमेड गारमेंट्स या वीविंग ऑफ द क्लॉथ, दैट वाज इन यूरोप. So which carried out mainly in homes or small workshops was only partially machines. ज़्यादातर वो हाथों से बनता था,
लोग इसे बना रहे थे, मशीन से कम था। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वर एरिस्टोक्रेसी स्टिल enjoyed पावर। ज्यादातर क्या था, एरिस्टोक्रेसी मीन्स द रिच पीपल। ओनली इंजॉय कौन कर रहा था अभी, सिर्फ अमीर लोग, ठीक है। गरीबों के हाथ में कुछ नहीं थी, सिर्फ मेहनत था और वो जॉब सीकर थे। enjoyed द पावर, peasant स्ट्रगल अंडर द burden ऑफ feudal rules। किसानों की हालत वही थी क्या, किसके अंडर में थे वो सामंतों के थे या फिर नोबल्स के अंडर में थे। अंडर द burden of feudal dues obligations and the rise of the food prices of a year bad harvest led to widespread pauperism in the town and the country। pauperism means poverty। ये पूरी चीजें क्या किस चीज को बढ़ा रही थी, पूरे चाहे वो शहर है या देश है, क्या बोलबाला था, गरीबी का। क्योंकि होता क्या है, when one section of society is rich and another section is poor, तो क्या होगा, बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं है। रिचर आर मोर रिचर, पुअर आर मोर पुअर, इट हैपेंड। So in 1848 was one such year, food shortages were and widespread unemployment brought population of Paris on the road। ये आपने देख ही रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इस टाइम पीरियड पर ऐसा होने लगा। ये रेवोल्यूशन के बाद की भी बात है कि सभी लोग सड़कों पर उतर आए। रीजन बिहाइंड, वी नो अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment brought the population of Paris on road and barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee। मतलब यहाँ तक कि हर बंधनों को तोड़ दिया गया, बैरिकेड्स आप जानते हैं, ठीक है, उनकी भी लोगों ने परवाह नहीं की। और लुइस 15 जो उस टाइम का किंग था, 1848 की बात कर रहे हैं, फ्रांस का, उसको भी भाग खड़ा होना पड़ा। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work। जबकि राइट्स बने, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली में ये हो गया 21 साल के लोग वोट देंगे और सबको काम मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप्स, यहाँ तक कि सबके लिए रोजगार की बंदोबस्त व्यवस्था की गई। अर्लियर 1845 वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। कर तो दिया लेकिन मीडिएटर्स बहुत थे। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठेकेदार थे, वो क्या कर रहे थे, वर सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल एंड drastically reduce their payments। supplied order the raw material and gave them orders, उन्होंने orders दे दिए, supplied किया material और finished textile but drastically reduce the payment, लेकिन payment घटा दी, किसकी, मजदूरों की। So the journalist William Wolf described the event in Silesian village and followers। तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक जर्नलिस्ट ने लिखा जिसका नाम विलियम वॉल्फ है। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो यू मस्ट रिमेम्बर द नेम ऑफ देम। क्या लिखता है वो, इन दोस विलेजेस विद 18,000 inhabitants, जिसकी एक गांव में इतनी पॉपुलेशन थी, देखिए पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। 18,000 inhabitants, cotton weaving's most widespread occupation, यहाँ सबका काम क्या है, कॉटन वीविंग, यानी कि कॉटन का काम करना है। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स एक्सट्रीम, लोग बहुत गरीब हैं, मिजरी का मतलब यहाँ सबकी बहुत दुखद कहानियां हैं। द डेस्परेट नीड ऑफ द जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। डेस्परेट का मतलब लोग काम के लिए ललायत हैं, मतलब उनको काम चाहिए चाहिए हर हालत में। सो वो क्या कर रहे हैं, एडवांटेज बाय, इसका एडवांटेज कौन उठा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स। टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर, मतलब जो भी उनको ऑर्डर वो करते हैं उन चीजों को कम कीमत पर बनवाना चाह रहे हैं। मतलब मजदूरी बिल्कुल कम है, लोग काम करके देंगे किस पे, ना के बराबर, काम भी अच्छा हो गया और उनको मजदूरी भी कम देनी पड़ी। सो ऑन 4 जून 2 PM लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स emerged फ्रॉम देयर होम्स। क्यों, सोच के देखिए, मजदूरी कम मिल रही है, कोई फायदा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मजदूरों ने क्या किया, स्ट्राइक किया।
डेमोन्स्ट्रेशन किया. सो दे emerged their homes, अपने घरों से बाहर निकले, and marched in the Paris up to the mission of their contractors demanding their wages. किस चीज के लिए? हमारी सैलरी, हमारी वेजेस बढ़ाओ, हायर वेजेस के लिए. दे वर ट्रीटेड विद स्कॉन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली. अब आए तो क्या होगा? मनी वाले लोग क्या कहेंगे? पावर वाले लोग उनको कंट्रोल करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे. ठीक है. सो फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस. इतना पिटते पिटाते भी लोग कहाँ घुस गए? उसके घर में. किसके? कॉन्ट्रैक्टर्स के. ठीक है. लोगों ने घर पे हल्ला बोल दिया. एंड स्मैश्ड द एलिगेंट विंडोज, पेन्स, फर्नीचर एंड पोर्सिलेन. मतलब हर चीज को तहस नहस कर दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, खिड़की दरवाजे सब. अनदर ग्रुप ब्रॉक इनटू द स्टोर हाउसेज एंड प्लंडर द सप्लाईज, द क्लोथ विच दे टोर इनटू द श्रेड्स. यहाँ तक कि जो उनको सप्लाई कपड़ा मिलता था, जिसके लिए वो काम कर रहे थे, सिलते थे या बनाते थे, उसके भी तार तार कर दिए. कट इनटू द पीसेस, स्मॉल पीसेस. मतलब एक तरीके से उनको भी तहस नहस कर दिया. द कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विद दिस फैमिली टू द नेबरिंग विलेज. यहाँ तक की सिचुएशन आ गई कि उसको अपने गांव छोड़कर जाना पड़ा. किसको? कॉन्ट्रैक्टर को. And however refuses the shelter such as person, and he returned 24 hours later having the requisite army. बाद में वो लौटा अपने साथ अच्छे खासे ट्रूप्स को लेकर. लेकिन हुआ क्या? इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट. इसमें काफी हाथापाई हुई और 11 जो मजदूर थे वो मारे गए. So this was all about the hunger struggle and revolt, popular revolt in England or in Europe. So till here we'll discuss this, and in another video we'll continue another segment. Thank you. Have a nice day.